میڈیا نے انتخابی نتائج نشر کرنے میں کچھ زیادہ جلدی دکھائی۔ ہمارے یہاں الیکشن کے نتائج 36 گھنٹوں میں مکمل ہوئے۔ 2018 میں الیکشن کے نتائج 66 گھنٹوں میں مرتب ہوئے تھے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیوز کانفرنس۔ الیکشن سے متعلق آرمی چیف سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ انارکی کی صورتحال کی اجازت نہیں دیں گے۔ فسادیوں کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ اور مرکز کے لیے پاور شیئرنگ کا 2 نکاتی فارمولہ تیار۔ 3 سال اور 2 سال کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ پہلے زیادہ سیٹوں والی جماعت کا وزیر اعظم 3 سال کے لیے آئے گا۔ حکومت کے آخری 2 سال کے لیے دوسری پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کی حمایت کی یقین دہانی۔ ادھر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون کی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جہانگیر ترین چیئرمین IPP کے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ جہانگیر ترین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سیاست سے اور پارٹی عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ تو چیئرمین IPP جہانگیر ترین نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ IPP کی سربراہی سے بھی وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ ابھی الیکشن جو کہ 8 فروری کو منعقد ہوئے، ان کی جانب سے 2 حلقوں سے انتخاب لڑا گیا، لیکن دونوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے مارجن سے شکست ان کو ہوئی۔ تو اب پاکستانی سیاست میں یہ بڑا ایک بریک تھرو ہے اور ان کی جانب سے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چیئرمین IPP کے عہدے سے بھی مستعفی ہو رہے ہیں۔ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بڑی خبر، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جہانگیر ترین چیئرمین IPP کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی سیاست کے حوالے سے یہ اہم خبر ہے۔ ہمارے نمائندے رضوان آصف لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، کوئی وجوہات سامنے آئی؟ کیا موقف سامنے آیا جہانگیر ترین کا؟ جی، جہانگیر ترین جو ہے انہوں نے ابھی ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنے پارٹی کی صدارت سے استعفے اور سیاست سے علیحدگی کا جو اعلان کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف کے عہدے سے بھی استعفے دے رہے ہیں، جبکہ سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں IPP کے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور میں ان کے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں جو ہے پاکستانی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آئندہ جو ہے وہ کسی قسم کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ ان کے اس بیان کے فوری بعد جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کا ایک بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اور ان کے تمام پارٹی ممبران جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، تاہم وہ جہانگیر ترین جو ہمیشہ کے لیے ان کی اور ان کی پارٹی کے سرپرست سے اعلیٰ رہیں گے۔ جہانگیر ترین کی جو ملک کی خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہے اور افسوس ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ جہانگیر ترین کی صلاحیتوں سے مکمل فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ جی اچھا رضوان، یہ بھی بتائے گا کہ کیا اندر کی خبریں کیا ہیں؟ کیا انہیں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس الیکشن میں، مطلب وہ دل برداشتہ کیا ہو گئے؟ اس کے بعد فوراً فیصلہ کر دیا گیا؟ جی آپ بالکل ٹھیک ہے۔ آج سے چند سال قبل بھی اسی حلقے میں الیکشن میں وہ ہار ہوئی تھی، شکست ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس حلقے میں کام کیا تھا اور اس مرتبہ پھر وہ اس حلقے میں جو ہے وہ اسی امیدوار سے ہارے ہیں جس سے پہلے بھی ہارے، جس کے بعد وہ کافی دل برداشتہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کے بھی کچھ مسائل تھے جس کا کے حوالے سے گزشتہ 10 سال سے وہ علاج بھی کروا رہے ہیں۔ ان تمام صورتحال کی وجہ سے اس بار جو ہے انہوں نے مکمل طور پر سیاست سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ اس سے قبل بھی 2 سال قبل بھی وہ سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، تاہم اس وقت میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے ساتھ رابطوں کی بنا پر انہیں دوبارہ سیاست میں آئے تھے، جس کے بعد انہوں نے بانی چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ان کی جانب سے کردار بھی ادا کیا گیا تھا۔ رضوان آصف، آپ کا شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا ہمیں۔ اہم خبر آپ کو دیں، جہانگیر ترین کا سیاست چھوڑنے کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ جہانگیر ترین چیئرمین IPP کے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ جہانگیر ترین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ اب اہم خبر ہے سیاست کے حوالے سے، جہانگیر ترین کا سیاست چھوڑنے کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ جہانگیر ترین چیئرمین IPP کے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ جہانگیر ترین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے چیئرمین IPP کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کو 2 حلقوں
में शिकस्त का सामना करना पड़ा था और बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त हुई थी दोनों हलकों में। तो इसके बाद जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ये अहम ऐलान सामने आया है। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में इस्तीफे का ऐलान किया है और इसके साथ साथ सियासत छोड़ने का भी बड़ा ऐलान उनकी जानिब से किया गया है। जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में यह ऐलान किया है। सियासत के हवाले से अहम खबर, इंतखाबात के फ़ौरन बाद ये बड़ी खबर सामने आई है कि जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, उसके बाद दूरियां बढ़ी बानी PTI से उनकी। इसके बाद हमने ये देखा कि उनकी जानिब से IPP के क़याम का ऐलान किया गया और जोक दर जोक लोग उनकी पार्टी में शामिल हुए, उनकी जानिब से इंतखाब भी लड़ा गया। लेकिन शिकस्त के बाद अब ये फैसला सामने आया है कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने जा रहे हैं। ट्विटर पर उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जहांगीर तरीन ने चेयरमैन IPP के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है, वो मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में यह ऐलान किया है कि वो सियासत से किनारा कुशी इख्तियार कर रहे हैं। अपने 2 हलकों से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, लेकिन बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब उनकी जानिब से ये बड़ा ऐलान सामने आया है। जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट किया, उनके जानिब से ये पैगाम भी दिया गया कि वो सियासत छोड़ रहे हैं और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन ने चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी होने का ये बड़ा ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन के सियासत छोड़ने का ऐलान सामने आ चुका है। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में ये ऐलान कर दिया है। तो सियासत में अहम खबर है, ये बड़ी खबर है। जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में ये ऐलान किया कि वो सियासत छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि वो मुस्ताफी भी हो रहे हैं चेयरमैन IPP के ओहदे से भी। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और जो सूरत हाल रही है इंतखाबात में जमात इस्लामी की, आपको बताते चलें कि अब एक और इस्तीफ़ा सामने आया है। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि जमात इस्लामी खातिर खा नशिस्तें हासिल नहीं कर पाए। KP में भी परफॉर्मेंस उनकी खातिर खा नहीं रही, अप टू द मार्क नहीं रही। कराची में भी यही सूरत हाल का सामना करना पड़ा और पूरे पाकिस्तान में भी जमात इस्लामी खातिर खा नशिस्तें हासिल करने में नाकाम रही है। ऐसे में एक और अहम ऐलान सामने आया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, जो कि काफ़ी अरसे से जमात इस्लामी के अमीर थे, अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया उनकी जानिब से। उन्होंने कहा कि जो परफॉर्मेंस रही है मैं उसका जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं ये ओहदे पर बराजमान नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया है और बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया गया है सिराजुल हक की जानिब से। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी की ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ और मेरा हक़ नहीं है कि मैं इस ओहदे पर बराजमान रहूँ, इसीलिए मैं इस ओहदे से इस्तीफ़े का ऐलान करता हूँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि वो भी अब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान नहीं रहेंगे। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी की मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो आज के दिन ये अहम खबर, 2 बड़ी खबरें। इससे पहले हमने आपको आगाह किया कि जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया और अब सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। जमात इस्लामी खातिर खा जो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाई आम इंतखाबात में, इसीलिए मैं मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में मैं नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, इसलिए मैं मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में मैं नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तो ये बड़ी खबर है। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में जो हमारी परफॉर्मेंस नहीं, हमें नाकामी का सामना करना पड़ा, मैं उस नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी की मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तफसीलात जान लेते हैं। मियां असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां असलम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने जमात इस्लामी के इमारत के ओहदे से जो है वो इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपने पैगाम में ये कहा है कि आम इंतखाबात में बतौर अमीर जमात इस्लामी जो है वो मैं ये महसूस करता हूँ कि जो हमें नाकामी हुई है उसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो मैं अपने तौर पर कबूल करता हूँ। इस पूरे कारकुनों ने, हर शूरा के अरकान ने, हमारे जितने भी कारकुन थे, सब ने दिन रात मेहनत की, हमारे नौजवानों ने दिन रात मेहनत की और इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है वो 24-24 घंटे काम किया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारे जो बहुत सारे उम्मीदवार थे उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसलिए बतौर अमीर मैं ये समझता हूँ कि मुझे आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि नाकामी का जिम्मेदार मैं हूँ और मैं अपने ओहदे से जो है वो मुस्ताफी होता हूँ। सिराजुल हक साहब जो हैं वो 17 फरवरी को सिराजुल हक साहब के इस्तीफे के बाद जो है वो जो जनरल सेक्रेटरी हैं अमीरुल अजीम साहब, उन्होंने 17 फरवरी को जो है वो शूरा का इजलास तलब कर लिया जिसमें उनके इस्तीफे को कबूल करने ना करने या नए अमीर के इंतखाब के हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर फैसला किया जाएगा। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जो हैं वो भी अपने नशिस्त पर कामयाब नहीं हो सके थे। इसके अलावा लियाकत बलोच साहब और दूसरे बड़े बड़े नाम जो थे वो भी कामयाब नहीं हो सके थे। जबकि कराची से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्हें गलत जताया गया है, वो ये सीट नहीं जीते। उन्होंने भी जो है वो अपने आप को जीती हुई नशिस्त से अलहदा कर लिया था, जिसके बाद जो है वो जमात इस्लामी के अमीर ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए जो है वो तमाम जिम्मेदारी कबूल की और उन्होंने कहा कि बतौर सियासतदान जो है वो अब जमात इस्लामी की इमारत जो है वो किसी नए और बेहतर विजन के जो लीडर है उसके पास आनी चाहिए ताकि वो जमात इस्लामी को आगे लेकर चल सके, जमात इस्लामी को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक डाल सके और जमात इस्लामी को मुल्क की बड़ी जमात बनाने में अपना किरदार अदा कर सके। सिराजुल हक साहब ने अपने दौर में जो है वो तकरीबन कुछ 63 के करीब उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट होल्ड किए, जगह जगह प्रोटेस्ट किए, मार्च किए, गजा मार्च किया, महंगाई के खिलाफ हर शहर में उन्होंने मार्च किया, अल खिदमत के निज़ाम को उन्होंने बहुत बेहतर बनाया और आम इंतखाबात में जमात इस्लामी का ये ख्याल था कि उनको जो है वो बेहतर मैंडेट मिलेगा और वो पहले से ज्यादा नशिस्तें जीतने में कामयाब होंगे। यही वजह थी कि उन्होंने किसी भी सियासी जमात के साथ जो है वो अलायंस करने से गुरेज किया था। लेकिन आम इंतखाबात के जो रिजल्ट हैं वो जमात इस्लामी के लिए बड़े शॉकिंग थे, जिसके बाद जो है वो अमीर जमात इस्लामी ने अपना ओहदे से जो है वो इस्तीफा पेश किया और उन्होंने कहा कि मैं बतौर बेहतर स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। जमात इस्लामी जो है वो सही एक जमहूरी जमात है जिसमें ओहदे के साथ चिमटे रहना या बोगस तरीके से जो है वो आम इंतखाबात जीतना और अपने आप को आगे करना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। बताएगा कि एक तरफ उनकी जानिब से, सिराजुल हक की जानिब से कहा गया कि जो नाकामी का सामना करना पड़ा इलेक्शन में, मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। दूसरी जानिब इलेक्शन के बाद जब से नताइज आ रहे हैं तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि नताइज तब्दील किए गए, धांधली की गई, इस इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए, ये भी कहा गया जो कराची के अमीर उनकी जानिब से। तो ऐसे में क्या कोई और वजूहात भी ये हो सकती हैं इस इस्तीफे की? अब मेरी जो तफसीली मुलाकात जमात इस्लामी के हमायदीन से हुई है और बातचीत हुई है, उनका ये कहना था कि अगरचा तकरीबन 40 से 50 मुख्तलिफ नशिस्तों पर जो है वो आम इंतखाबात में रिगिंग की गई है, धांधली की गई है, फॉर्म 47 के मामलात में जो है वो हेरा फेरी की गई है। लेकिन अगर वो हेरा फेरी ना होती फिर भी जमात इस्लामी जो है वो नशिस्त नहीं जीत सकती थी। यही वजह थी कि जमात इस्लामी जो कराची के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नशिस्त वापस की। बिल्कुल ठीक है, उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, लेकिन बड़ी खबर के सिराजुल हक अमीर की हैसियत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। शुक्रिया आपका मियां असलम।